गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण की पूर्व संध्या पर जेतलपुर ब्रिज से गुजर रहे वाहन चालक का गला कटने की घटना सामने आई है। उत्तरायण से पहले ही वडोदरा में पतंग की डोर से दुर्घटनाओं का दौर जारी है। एक और वडोदरा शहर उत्तरायण को जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वडोदरा के जेतलपुर ब्रिज से गुजर रहे निखिल पटेल नामक वाहन चालक का गला पतंग की डोर से कट गया। उन्हें फौरन अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया, जहाँ उनके गले में 5 टाँके आए हैं। मैं घर पे जा रहा था तो जेतलपुर ब्रिज पे अचानक डोरी गिर गई तो मेरे को गले में लग गई। मेरे को उधर साइड में थोड़ा लग गया है, 5 टाँका आ गया है। આજે મને એક મારા મિત્રનો ફોન આવ્યો કે જેતલપુર બ્રિજ પરથી જ્યારે લોકો પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એમના ગળામાં દોરીથી અકસ્માત થયો છે। મને જાણ થતાં તાત્કાલિક હું એસએસજી પર આજે આવ્યો છું અને મારા મિત્રને સારવાર કરાવીને એને 5 ટકા આવ્યા છે। તો એ સારવાર કરાવીને આજે અમે એને ઘરે રવાના કરીએ છીએ। પણ મારે જે આજે મકર સંક્રાંતિના પર્વ નિમિત્તે જે ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે એ ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ લોકો ના કરે અને સાવચેતી રાખે, એના માટે વડોદરાના તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે ચાઇનીઝ દોરાથી દૂર રહો અને આપણો સાદો દોરો વાપરો અને શાંતિથી મકર સંક્રાંતિ પર્વ ઉજવો। आवारा पशुओं के साथ साथ आवारा कुत्ते भी अब नागरिकों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं। वडोदरा के निजामपुरा में नटराज सोसाइटी में रहने वाली 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला अलका भट्ट पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं और फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ ने कॉर्पोरेशन पर सवाल उठाए हैं। કૂતરાઓનો ત્રાસ વધી ગયો છે કેમ કે કૂતરાઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે, ઘણી સંખ્યા થઈ ગઈ છે। પહેલાં કૂતરા આટલા પ્રમાણમાં હતા નહીં એટલે અને કૂતરાઓની સંખ્યા વધી છે એથી કૂતરાઓનો ત્રાસ પણ વધી ગયો છે। માણસ ઘરની બહાર નથી નીકળી શકતો। મહિલાઓ અત્યારે છે ને કૂતરાઓ રાતનો સમય થાય, સાંજ પડવા લાગે એટલે કૂતરાઓ ભસવાનું શરૂ કરી નાખે। કોઈ પણ વ્યક્તિ જાય અજાણ્યું લાગે એટલે ભસવાનું શરૂ થઈ જાય। પહેલાં તો ભસતા જ હતા કૂતરા, પણ હવે તો રસ્તામાં કોઈ પણ નાનું બાળક હોય, ઘરડું હોય, કૂતરાને આખી ગલીથી ગલી મૂકવા જાય છે। વ્હીકલ પાછળ દોડે છે, 4-5 કૂતરાઓ એક વ્હીકલ પાછળ દોડતા હોય છે। અને હવે તો કૂતરાઓનો ત્રાસ એટલો વધી ગયો છે કે ઓન વ્હીકલ કૂતરાઓ જમ્પ કરે છે પગ પર, બચકા ભરવાનું। આ નિઝામપુરાનો નટરાજ સોસાયટીનો વિસ્તાર છે। અમર પાર્ક સોસાયટીમાં એક આંટી રહે છે। એ આંટી રાત્રે મોડા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો પ્રોગ્રામ પતાવી અને બસમાં ઉતરીને ચાલતા ચાલતા એમના ઘરે જતા હતા તો આ નટરાજ સોસાયટી પાસે ઘણા બધા કૂતરાઓ એમને ફરી વળ્યા। એમને એટલી બધી જગ્યાએ કરડી ગયા કે આંટી ખૂબ જ ગંભીર હાલતમાં છે, સિનિયર સિટીઝન છે, એ એમનો પોતાનો બચાવ પણ નહીં કરી શક્યા। એટલા બધા કૂતરાઓ એમને ફરી વળ્યા ને એટલા બચકા ભર્યા છે, એટલું બધું કરડી ગયા છે કે આ આંટી બહુ સિરિયસ થઈ ગયા છે। અત્યારે એ પોતે સત્યમ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે। એટલે મારે કોર્પોરેશનના તંત્રને એટલું જ કહેવું છે કે કોર્પોરેટર તરીકે હું દરેક સભામાં વારંવાર રજૂઆત કરું છું કે તમે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી પણ આ કૂતરાઓની વસ્તી નિયંત્રણમાં આવતી કેમ નથી? દરેક શેરીએ, દરેક ગલીએ, દરેક સોસાયટીમાં એટલા બધા કૂતરાઓ વધી ગયા છે કે નથી બાળકો સુરક્ષિત, નથી યુવાનો સુરક્ષિત, નથી મહિલાઓ સુરક્ષિત કે નથી સિનિયર સિટીઝનો સુરક્ષિત। તો કરોડો રૂપિયા ખર્ચો તમે કરો છો ક્યાં? માત્ર કાગળ પર તમે કરોડો ખર્ચી અને લોકોને ઉલ્લુ બનાવો છો। એટલે આ પ્રકારની બહુ જ ગંભીર ઘટના છે। આમાં કોર્પોરેશનના તંત્રએ તાત્કાલિક પગલાં ભરવા જોઈએ એવી મેં માગણી પણ કરી છે। મેં મારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ પોસ્ટ મૂકી છે કે આ તંત્ર बिल्कुल निष्फल निवड़ेलू तंत्र है जेना कारणे वडोदरा शहर में आवा बनाव बनता रहे छे। गुजरात के भरूच के जंबूसर के एक गांव में भी कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ एक आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काट लिया, जिससे ग्रामजनों में कुत्तों को लेकर डर देखने मिल रहा है। और उनके बच्चों को ये कुत्ता काट गया, कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं। मैंने जैसे ही मालूम पड़ा तो एचआर में जान करी, एचआर वालों ने ऊपर जान करी है, लेकिन अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ये कुत्ता ने काटा है सर, आज ही काटा। सुबह में घर के आगे खेल रहा था, नहीं रूम के आगे वहीं पे काटा दिया। 7-8 लोग को काटा है। वडोदरा में एनिमल रेस्क्यू एंड इमरजेंसी के लिए काम करती वी केयर संस्था ने मकर संक्रांति पर घायल होते पंछियों के लिए एक विशेष केयर सेंटर वडोदरा अलकापुरी बर्ड सर्कल पर बनाया है। यह सेंटर 14-15 जनवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक घायल पंछियों के लिए कार्यरत रहेगा। मकर संक्रांति पर्व, हम सबको इस पर्व का साल भर इंतज़ार होता है, मगर उसी के साथ साथ एक बात हमेशा हर साल
हमें आपको बतानी पड़ती है, और वो ये कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तब समय का ख्याल रखें। सुबह जब पंछी अपने घोंसले छोड़कर जाते हैं अपना दाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए, और शाम को जब पंछी लौटते हैं अपने घोंसलों की ओर, ये 2 समय को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ में अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं और पंछी नज़र आते हैं तो उस डोर को आप छोड़ दें। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो डोर चला जाए, वो पतंग चली जाए, मगर फ़र्क एक बात का बहुत पड़ेगा कि उन पंछी को आप जीवन दे पाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात हर साल हम आपको बताते हैं, और अगर कोई पंछी घायल नज़र भी आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हम बताते हैं। वही बात बताने के लिए फिर एक बार मैं जो सेंटर हर साल चकली सर्कल पर बनता है वी केयर का, वहाँ पर पहुँची हूँ। और अब गुजराती अगर आप पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पक्षी बचाओ अभियान है और घायल पक्षीओना सारवार माटेનું આ केंद्र છે। ये सेंटर हमेशा जो भी पंछी घायल होते हैं उत्तरायण के मौके पर, वो यहाँ आप लेकर आ सकते हैं। इमरजेंसी में आप कोई ऐसा पंछी है जिसे आप नहीं लेकर आ सकते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9409027166 पर। अब यहाँ किस तरह से सारवार होती है पंछियों की, और कौन डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होंगे, किस तरह का प्रोसीजर होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट पंछियों को मिलती है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वी केयर की प्रतिभा मैडम पंचाल हमारे साथ जुड़ी है। उसके बाद में मैं सेंटर दिखाऊंगी। मैम, क्या कहेंगे इस सेंटर के बारे में जो हर साल आप लगाते हैं और पंछियों को सारवार देते हैं? हम लोग पिछले 17 साल से ये सेंटर यहाँ पे चकली सर्कल पे लगा रहे हैं पक्षियों को बचाने के लिए, और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आनंद वेटनरी कॉलेज के एसोसिएशन में हम ये सेंटर लगाते हैं हर साल। और हमारे पास 2 MBSc डॉक्टर्स सारवार यहाँ पे बैठेंगे और 4 BBSc डॉक्टर्स हैं और 4 LIs हैं हमारे पास, प्लस अटेंडेंट्स एंड अराउंड 20 वॉलंटियर्स तो पिकअप करने के लिए कॉल्स अगर आते हैं तो। और लोग यहाँ पे भी बहुत लेके आते हैं और ऑन द स्पॉट हम लोग डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पूरी रहती है कि हम यहीं पे सर्जरी और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम यहीं पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और पोस्ट सर्जरी के लिए हम लोग शेल्टर पे रखते हैं बर्ड्स को, और इनके जो वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करना होता है वो हम वहाँ पे ले जाते हैं। जैसे आईबीस है या ऐसे कोई शेड्यूल्ड बर्ड्स आते हैं तो वो हम इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, उसको हम नहीं रखते। आपने कहा पिकअप की बात जो आपने बताई, तो ये एम्बुलेंस आप जो देख रहे हैं वो ये एम्बुलेंस जाती है मैम पिकअप के लिए? ये हमारी एम्बुलेंस है। ये हम लोग डेली मॉर्निंग 10 to 5 की सर्विस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरा बड़ौदा कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉल्स लगभग एवरी डे 50 to 60 कॉल्स आते हैं। बट एज सब लोग को पता है कि एनिमल्स पकड़ने में इतना टाइम लगता है कि हम लोग हार्डली 8 to 10 एनिमल्स पिकअप कर पाते हैं एम्बुलेंस में। पर अभी लोगों का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि हमारे शेल्टर पे एटलीस्ट 15 to 20 केसेस लोग लेके खुद आते हैं क्योंकि हम सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच पाती है। इवन बर्ड कैंप में भी यही होगा कि हमारी एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच पाएगी, पर हमारे वॉलंटियर्स हैं जो अपने खुद के व्हीकल्स पे आते हैं और वो पिकअप करते हैं और लेके आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। और लोग भी अपने पब्लिक भी लेके आती है काफ़ी। इसके साथ में एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम जब कहीं से गुज़र रहे हैं, रोड पे आपको पंछी, घायल पंछी आपको गिरा हुआ मिल जाता है, तो आप यहाँ चकली सर्कल पर अलकापुरी इलाका आप सब जानते हैं। अलकापुरी इलाके में बर्ड सर्कल है। बर्ड सर्कल अब नहीं रहा क्योंकि नया ब्रिज जो बना है अटल ब्रिज के बिल्कुल नीचे बर्ड सर्कल के पास ही ये सेंटर बना है, और ये सेंटर में दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। मैम, कुछ मेडिसिन के बारे में बताइए। हमारे जो डॉक्टर हैं सीनियर वेट डॉक्टर पायल चावड़ा, वो अभी यहाँ पे नहीं आ सके क्योंकि हमारा शेल्टर पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सो वो उन्होंने सब ये मेडिसिन पूरा शेड्यूल करके अरेंजमेंट किया है। फिर हमारे LIs हैं, अटेंडेंट्स हैं,
वो लोग सब मॉर्निंग में 8 o'clock से दे विल बी एट ड्यूटी। फिर आनंद से डॉक्टर संगीता और उनके 2 और जूनियर वेट्स आ रहे हैं। डॉक्टर संगीता इज़ अ सीनियर वेट और 2 जूनियर वेट्स BBSc आ रहे हैं, प्लस उनकी पूरी टीम आ रही है। सो वो ये सारी मेडिसिन जो हैं वो ट्रीटमेंट, सर्जरी, और हमने ऐसे भी टेप यूज़ मतलब हम लोग लाए हैं जिससे कि अगर हल्का फुल्का चोट लगाओ तो हम उसको बैंडेज करके वी कैन मतलब फ्लाई कर सकते हैं। अगर बर्ड फ्लाई करने लायक है तो हम उसको छोड़ देंगे, उड़ा देंगे, तो वो ऑटो हीलिंग हो जाएगा उसमें। सो उस टाइप का सब फैसिलिटीज़ हमने मेडिसिन और वो सब अरेंज किया है। और हमको इस बार हमारा ये बर्ड कैम्प न्यूमरेटर कंपनी ने स्पॉन्सर किया है फॉर मेडिसिन स्पेसिफिकली। मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि जो बैंडेज इस्तेमाल होती हैं तो उसे जरा सा चोट आई है तो वो फ्लाई कर सकता है। इतने सालों से ये सेंटर आप यहाँ हमेशा करते हैं उत्तरायण के मौके पर, तो कि कैसी इंजरी वाले बर्ड्स आते हैं? ज़्यादातर उनको गर्दन पे इंजरी हुई है, पैरों में हुई है, किस तरह की इंजरी हुई है? या ज़्यादातर तो जैसे पैर 2-3 टाइप के आते हैं। कई बर्ड्स ऐसे आते हैं कि पूरे थ्रेड में एंटेंगल्ड होते हैं, तो हम सिर्फ उसको थ्रेड निकाल देते हैं और उड़ा देते हैं, तो इतनी इंजरी नहीं होती है। सेकेंड टाइप के आते हैं जैसे कि पैर कट गया होता है एंड विंग्स कट गए होते हैं, सो उनको हमको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए रखना पड़ता है बैंडेज करके। सर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होते हैं जिनका कि हमको स्टिचेस लेना पड़ता है, और कुछ पोर्शन जैसे कट करके उसके स्टिचेस लेके, पर हमारा जो सर्वाइव कर जाते हैं तो अराउंड लाइक 80% सर्वाइवल हो जाता है, और जो आके तुरंत ही ऑन द टेबल डेड हो जाते हैं वो यहीं पे डेड हो जाते हैं, मतलब वो पता है कि दे विल नॉट सर्वाइव। पर जैसे सर्जरीज करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं उनका सर्वाइवल चांसेस काफ़ी बड़ा होता है। फिर वो हम लोग डिपेंड करता है 10 days 20 days 1 महीना तक हमारा चलता रहता है कि वो उड़ाते रहते हैं जैसे जैसे ठीक होता है। और हमारा शेल्टर ऑलरेडी थोड़ा फार है, गांव में है, ग्रीनरी बहुत है, तो हम वहीं पे उड़ा देते हैं। और हमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ कबूतर और ये सब वो वहीं रह जाते हैं शेल्टर पे, क्योंकि हमारा नेचुरल हैबिटेट है। शेल्टर पे भी बहुत पैरट्स हैं, मोर हैं, ये सब अपने आप आते हैं और जाते हैं, मंकीज़ हैं, मतलब नेचुरल है। इट्स नॉट दैट कि हम खाली डॉग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सारे बर्ड्स भी बहुत आते हैं, तो उनको हम उड़ा देते हैं, वो वहीं रहते हैं, हम उनका खाना पूरा डालते हैं। बरोडियंस को क्या कहोगे ये सेंटर का? वैसे तो मैं चाहूँगी कि ये सेंटर का कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि आप सब समझदारी से पतंग अगर उड़ाते हैं तो पंछियों को नुकसान नहीं होगा, उनको इंजरी नहीं होगी, और ये सेंटर पे कम से कम पंछियों को लाने की ज़रूरत हो। मगर फिर भी मैम कि जो भी वडोदरा के वासी हैं जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि ये सेंटर का वो इस्तेमाल करें पंछियों को बचाने? मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो डेडली कोटेड जो ग्लास कोटेड मांझा होता है वो यूज़ नहीं करें। फेस्टिवल है, आप एंजॉय करें, प्लस मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो आपने स्टार्टिंग में बोला वो अगर आप ध्यान रखें तो कम से कम इंजरी होगी, बिकॉज़ वही टाइम होता है बर्ड्स का घर पे जाना और आने का, तो वो अगर टाइम का ध्यान रखें तो इंजरी कम होगी। ग्लास कोटेड मांझा ना यूज़ करें तो पक्षियों को मतलब इंजरी कम होगी। प्लस अगर ज़रूरत हो तो ऑफकोर्स हम इसीलिए बैठे हैं, पर हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कमी आए तो उनको परेशानी ना हो बर्ड्स को, एंड दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम, और इतना अच्छा यहाँ प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए पंछियों की ये सेंटर बना है। तो ये सेंटर में अगर आपको कोई भी पंछी नज़र आता है ऐसा इंजरी वाला, तो उसे ज़रूर यहाँ लेकर आए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं। मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, तो मकर संक्रांति के दिन वैसे बहुत ज़्यादा हमारा एक रिचुअल माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हम लोगों को दान पुण्य करना होता है। सुबह सवेरे से गायों को खिलाना, बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो पंछियों के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। आज के दिन ये बात ज़रूर अपने आप में उतारें, लोगों को बताएं, क्योंकि हम जब छत पर जाते हैं तो इतना ज़्यादा शोरगुल होता है कि उस बेजुबां पंछियों को उनका दर्द हमें महसूस नहीं होता। उनके दर्द में जो आवाज़, क्योंकि उनके पास आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, तो वो आवाज़
सुनने की कोशिश करें। उस म्यूज़िक के शोरगुल में ऐसा ना हो कि हम हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे उत्सव के लिए किसी की जान को खतरे में डालें। मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर त्योहार मनाना एक बहुत अलग मज़ा देता है, तो इसी तरह त्योहार मनाएं। गुजरात के वडोदरा में पैदल रिक्शा चलाने वाले शख्स को झांसा देकर सरेआम दिन दहाड़े हजारों रुपए की चोरी कर ली गई। वडोदरा में रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले शख्स को झांसा देकर 12,000 रुपए की चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें रिक्शा चालक को बातों में उलझाकर उसका पर्स चोरी कर लिया गया। सवारे मार्केट जतेलो तो महावीरोल चौकड़ी तरफथी बे जणा आया અને એક્ટિવા હતી એમની કને, તો મને એવું કીધું કે મહાવીરોલ ચોકડી પડી ગયું છે, મારું પાકીટ તો તમને લીધું છે ભાઈ? મેં કીધું ના ભાઈ મેં નહીં લીધું છે, મેં મજૂરીઓ માણસ મેં શું કરું લઈને? તો એમને એવું કીધું છે કે તમને જ લીધું છે કે 2 થી 3 જણાને મને ત્યાં આગળ કીધું કે એક પગ રિક્ષાવાળો ગયો એને લીધું છે। મેં કીધું ભાઈ મેં મજૂરીઓ માણસ મેં શું કરવા લઉં, પણ તો બતાવો તો તમારા ખિસ્સા, તો મારા ખિસ્સામાંથી મેં પાકીટ કાઢ્યું લઈને નાહી ગયા છે। અહીંયા ત્યાં ભાઈ છે ને દોડ્યા ને, અમે ત્યાંથી સામેથી જોતા હતા તો આ ભાઈ દોડ્યા, ચોર 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 કરીને દોડ્યા, પેટ્રોલ પંપની આગળ સુધી ગયા, પછી એ ભાઈ ભાગી ગયા, પેલા એક્ટિવાવાળા કઈ હતા 2 જણા, પછી આ ભાઈ પછી પાછા આવ્યા, અહીંયા આવીને પછી કહે છે મારે ચોરી થઈ ગઈ છે। અમે ત્યાંથી આવીને પૂછ્યું હું શું થયું તમારે, તો કે ચોરી થઈ ગઈ છે। હું કેટલા થયા? 12,000 रुपया ચોરી ગયો ખિસ્સામાંથી કાઢીને। गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्तरायण, लोहड़ी और पोंगल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति का पर्व देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण के रूप में पतंग उड़ाकर मनाई जाती है, वहीं पंजाब में लोहड़ी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं तमिल समाज द्वारा इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्तरायण का पर्व मनाया गया, जिसमें 1 से 8वीं कक्षा के प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विभाग के 1300 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया। इस पर्व को मनाने के भागरूप अलग अलग वेशभूषा के साथ शिक्षकों और छात्रों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। आज हमारी पाठशाला प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्तरायण का उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग सभी बच्चों ने अलग अलग राज्यों का उत्तरायण का जश्न कैसे मनाते हैं, अलग अलग राज्यों में वो कैसे मनाते हैं वो आपने देखा। जैसे महाराष्ट्र में लोग हल्दी कुंकू करते हैं, तिलगुल देते हैं और नौवारी साड़ियाँ पहनते हैं। गुजराती में ऊंधियू, जलेबी और फाफड़ा और बहुत कुछ बनाते हैं और चनिया चोली पहन के पतंग उड़ा के अपना मनोरंजन करते हैं। और आपने देखा तमिल में पोंगल बना के, वह एकदम खीर जैसा होता है खाने में और बहुत अच्छा लगता है, उसे पोंगल कहते हैं। और हर साल हमारे स्कूल में यह त्योहार बहुत जश्न से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आता है। इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का फल कई गुना प्राप्त होता है। बच्चों को पता चलता है कि मकर संक्रांति भारत में अलग अलग रीति रिवाज से कैसे मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। बच्चों को यह इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलता है कि लोग ऐसे ऐसे मनाते हैं। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के अंदर एक सुंदर उत्तरायण का कार्यक्रम किया। उत्तरायण यानी हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य देव को हम समर्पित पूरा कार्यक्रम किया है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो हम लोग काम करते हैं कि भगवान के साथ सूर्य देव को भी प्रणाम करते हैं और उनको हम रिझाने का प्रयत्न करते हैं। ये पूरा समय ऐसा है कि जिसके अंदर सब विद्यार्थियों को हमने इंटरनेशनली क्या होता है, तो खास पोंगल के दिन हमने पोंगल यूज़ किया। साउथ इंडियन बच्चों के द्वारा पूरा उन्होंने पायसम बनाया, साथ में ट्रेडिशनल वेयर में आए गुजराती लोगों ने ऊंधियू जलेबी बनाया, पतंग उत्सव का महत्व समझाया। साथ में पंजाबी लोगों ने जो लोहड़ी का त्यौहार मनाते उसके अंदर आग अग्नि प्रकट करके उसके अंदर जो धान्य होता है उसको समर्पित किया। साथ में मराठी लोगों ने हल्दी कुमकुम किया और साथ में गिफ्ट भी देते जो मराठी ट्रेडिशन है, ब्लैक साड़ी पहन के आए। और जो बंगाली लोग ने उसने गंगा स्नान और पूरा विविधता में समझाया।
जापानीज, यूरोपियन, चाइनीज़ सब बन के आए थे, जो अपने अपने देश में जो इस समय का जो त्यौहार का जो इम्पोर्टेंस है वो समझा है। साथ में आज नृत्य करके हमने ये सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को बधाई दी और लाइफ में इसी तरह की हर एक को आनंद उल्लास हो, ये हमने अपेक्षा रखी है और भगवान से